UniPay back office function training. We've been doing these for better part of a month now, and we've had an amazing response in regards to showing you all how your global UniPay account actually goes and functions and what you can go and do, already, which is amazing. First off, before I go and get into the introductions for those people who don't know who I am, we've got an amazing time right now with Global UniPay. And if you wait until the last part of this presentation, I've got some very exciting news for each of you. But where we're at right now is Global UniPay is a safe and secure platform, and we prioritize safety and security for people's wealth. And especially if you've been reading the news in certain parts of the world right now, there's a lot of scary news coming out that is in relation to people's wealth not necessarily being as secure as what they once thought. So what we want to go and do today is show you each how to go and use your Global UniPay account, should you have been verified, should you have been accepted, so that you can go on and go forth and make the necessary steps to keep your wealth safe and secure. It's one of the things that Academy of a Private Investor goes and teaches is how to make money, how to multiply it, and how to keep it. And I'm very proud to go and say that Global UniPay goes and covers all three of those, but this isn't the session to go into each and every single one. That's Marshall's cup of tea. All right, so without further ado, let me introduce myself. My name is Aidan Ward. Next slide, please. I am the project manager assistant for Global UniPay. I'm the co-host of the Life of the Brothers of Everich podcast that I go and do with a couple of the Australian local council members. I'm an agent in the Eva Rich Partner Program, and I'm also a member of the Generals of the World for Peace. And I think that is an incredible component of our ecosystem and, our esteemed partners, because while it is great to go and have wealth, have an abundant amount of wealth, isn't it amazing how we can go and pay it forward and make a massive difference in the world to go and make it the world that we know should go and exist. Next slide, please. So I want you to just go and take a minute, and if you haven't yet been verified or set up your Global UniPay account, let's use our imagination, okay? So let's assume that if you're here right now, that you've been verified, you've gone through the onboarding process, but you're sitting there with a blank account thinking, how on Test.
तो यहाँ पर पहला जो जो भाग है इस प्रस्तुति का, वो कुछ आपको 2-3 स्लाइड्स लगेंगे उसको समझने में, और वो है प्रोफाइल का। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस दिखेगा, और आपको अपनी एक अपने यूजर आईडी दिखेगी जो आपके लिए एकदम अद्वितीय है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल के लिए एक विकल्प दिखेगा, और साथ ही साथ आपका जो सपोर्ट टीम है उसके साथ आपकी जो वार्तालाप है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अगर आप यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि ये जो आईडी है ये अद्वितीय है और ये केवल आप ही के लिए है, और ये आपको बताता है कि किस प्रकार से ये जो ग्लोबल यूनिट आईडी है ये आपके लिए समर्थन सेवा से, और आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप कभी भी पैसे जो हैं वो आप ग्लोबल पे अकाउंट के अंदर अगर आप डालते हैं, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको आईडी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी प्रोफाइल बटन पर जाइए और वहां पर आप इस यूनिक आईडी को आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रोफाइल के अनुभाग की बात कर ली है, लेकिन अब जो ये हिस्सा आ रहा है ये जो है ये हमारे मर्चेंट्स के लिए है, व्यवसाय के मालिकों के लिए है, और जो टीम्स हैं जो कि हमारे ग्लोबल यूनिट पे के मंच के साथ जुड़ेंगे, जो कि एक अद्वितीय मौका है उनके लिए। तो यहाँ पर आपने अपना जो व्यक्तिगत अकाउंट है वो आपने सेट कर लिया है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना व्यावसायिक अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ सर आप वो कर सकते हैं यदि आपको जरूरत है, और उसी के साथ साथ आप जो हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी व्यक्तिगत आय और व्यवसायिक आय दोनों को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि व्यवसाय, अगर आप देखते हैं कि व्यवसाय के पंजीकरण करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर उसको करने के लिए आपको एक बार का शुल्क देना होता है। और इसीलिए जब आपका जो ग्लोबल यूनिट पे है वो आपका व्यक्तिगत अकाउंट है, और उस व्यक्तिगत अकाउंट में आपके पास कुछ रकम पड़ी हुई है, कुछ आपका शेष राशि पड़ी हुई है, और अगर आपके पास शेष राशि है तो वो वहां से कट जाएगी और आपका बिजनेस यानी कि व्यवसायिक अकाउंट जो है वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि आप 3 मुद्राओं के बीच में से चुन सकते हैं, यूरो, यूएसडी या स्विस फ्रैंक। और आपको यहाँ पर जब आप अपना व्यवसायिक अकाउंट खोलने की बात करेंगे या क्लिक करेंगे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर आया जाएगा। आपको अपने व्यवसाय का नाम डालना होगा, और उसके बाद या तो संस्था का या आपका अपने व्यवसाय का नाम, और उसके बाद आपको डालना पड़ेगा कि आपको आपके देश की सरकार किस प्रकार पहचानती है। तो हमारे देश में जैसे जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर देना होगा, ताकि आपके जो कर का नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। तो उससे कर से जुड़े हुए सारे के सारे आपके जो मसले हैं या जो आपकी चीजें हैं वो उस नंबर से आपको पहचाना जाता है। और उसके बाद आप जब ये दे देते हैं, तो उसके बाद आपको अपनी पंजीकृत कंपनी का पता देना होता है। और उस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो पता है, इस पते को आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि जब आप ये भर लेते हैं तो उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सी मुद्रा में आप जो हैं आप अपना व्यवसाय करना चाहेंगे, क्या वो यूरो में या वो यूएसडी में, या आप स्विस फ्रैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें भर देते हैं, तो नीचे एक अस्वीकरण है, और यहाँ पर वो आपको बताता है कि आपने एक बिजनेस अकाउंट या व्यवसायिक अकाउंट खोलने वाले हैं, और इसका
जो शुल्क है वो 200 यूएसडी है या फिर 1500 यूरो है, और वो आपको बताता है कि ये शुल्क आपके अकाउंट से कट जाएगा। और यही चीज मैं आपको पहले भी बता रहा था। तो यहाँ पर आपको, और उसके बाद जब आपने ये सारी जानकारी भर दी, डिस्क्लेमर या अस्वीकरण के ऊपर भी टिप कर दिया, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि एक बहुत नीला बटन, बड़ा बटन आपके पास है, तो आप उसको दबाएंगे तो आप अगली स्लाइड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस प्रस्तुति के अंदर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं यहाँ पर अपना व्यावसायिक अकाउंट खोल पाऊं। ये मैंने केवल आपके लिए किया, और ये आपको बताएगा कि आप यहाँ पर जो है अभी आपके आपके अकाउंट से वो पैसे की अपेक्षा रख रहा है, शुल्क की अपेक्षा रख रहा है। लेकिन यदि आपके पास इतने पैसे हैं, यानी कि 1500 यूरो से ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ यहाँ पर जैसे ही अगर वो अकाउंट में पैसे होंगे तो वो पैसे कट जाएंगे और आपका व्यवसायिक अकाउंट चालू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सरल हैं, और व्यवसायिक अकाउंट के साथ जो है वो 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, और वो ये है कि आप अपना अकाउंट कैसे टॉप अप करेंगे, दूसरा आपके पास पैसे का हस्तांतरण कैसे होगा, और तीसरा आप पैसे कैसे आगे आप प्राप्त करेंगे या आप कहां पर आगे अकाउंट में भेजेंगे। तो ये 3 चीजें अब आपके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ तक अभी तक जो हमने बात की है वो बहुत सरल है, तो 3 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर एक कॉफी का मैं मैं लुत्फ ले लेता हूं। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपका जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपके पास उपलब्ध रहेगा, और यहाँ पर आपको बताएगा कि आपके पास क्वांटम में परिसंपत्ति है। ये आपको दिखाएगा क्वांटम एसेट्स क्या क्या पड़े हुए हैं, और इन क्वांटम एसेट्स के साथ साथ आपके पास डिजिटल परिसंपत्ति भी होगी, स्टेबल कॉइन्स भी होंगे, बिटकॉइन भी होगी। और इस समय हमारे पास बिटकॉइन, यूएसडीसी, एथेरियम और टेथर होगा। और बहुत शीघ्र हम लोग जो हैं इस परिसंपत्ति को और बढ़ाएंगे, और ताकि आपके पास किसी भी तरीके से विकल्पों की कमी ना हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप जो हैं वो पैसे जो हैं वो बैंक, जो आप अब किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप सबसे नीचे जाएंगे स्क्रीन के, तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या लेन देन जो है, जो ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट में होता है, वो आपको वहां पर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 बहुत ही आसान विकल्प आपके सामने आते हैं। तो आप या तो टॉप अप कर सकते हैं, या फिर आप बैंक को आप हस्तांतरण कर सकते हैं, किसी भी बाहरी बैंक को। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वांटम एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, इन सभी के ऊपर ये बटन है, और ये आपको विकल्प देता है कि इन तीनों चीजों में से आप क्या करना चाहते हैं। और उस हिसाब से आप बटन दबा सकते हैं कि अगर आप टॉप अप करना चाहते हैं तो टॉप अप का बटन, अगर आप इसको विनिमय करना चाहते हैं यूरो के अंदर तो आप वो दबा दीजिए, और अगर आपको पैसे अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो वो आप उस विकल्प को दबा दें। तो आप ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कर सकते हैं। तो यदि आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप क्वांटम परिसंपत्ति में जाएंगे, और वहां जाकर आप इस राशि को हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी टॉप अप कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी टॉप अप कर सकते हैं। तो टॉप अप करने के लिए ये 2 विकल्प बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि कितनी बड़ी राशि से आप टॉप अप करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको नियम और शर्तें दिखाई जा रही हैं। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप एक बार नियम और शर्तों को ज़रूर पढ़िए। यथोचित परिश्रम, ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता हो कि आप सभी नियम और शर्तों के साथ आप अच्छे से अवगत हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग एक पारदर्शिता रखें, और जब आपने एक बार आप पुष्टि कर देते हैं कि आपने ये नियम और शर्तें पढ़ लिए हैं, तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग टॉप अप कर रहे हैं, और यदि आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करते हैं, तो हम लोग आपको यहाँ पर ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल टॉप अप करने के लिए तभी कीजिए जब राशि बहुत बड़ी हो, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर आपको 25 यूरो की का प्रभार, या फ्रैंक के लिए 45 और यूएसडी के लिए $45 का प्रभार लगता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पर जब भी आप टॉप अप करें, तो कम से कम फीस आपको लगे। तो चाहे वो आप बैंक से हस्तांतरण कर रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, और क्रेडिट कार्ड का जो है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन यदि आप इतने बड़ी राशि का हस्तांतरण कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, जो कि जब आप तुलना करते हैं क्रेडिट कार्ड के हस्तांतरण से, तो ये हस्तांतरण आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको एक प्रकार से स्थायी प्रभार देना है, जो कि 35 यूरो, 45 स्विस फ्रैंक और 45 यूएसडी है। तो इसीलिए मैं बहुत सुरक्षित तरीके से आपको ये कह सकता हूं कि ये यहाँ पर अगर आप और जगह देखेंगे, तो ये वाकई बहुत सस्ता है कि आप किसी भी अकाउंट से, दुनिया के किसी भी अकाउंट से आप जो है अपने अकाउंट को आप टॉप अप कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कई बार कुछ बैंक्स जो हैं वो बहुत जल्दी हस्तांतरण नहीं करते हैं, और वो जब भी आप एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण होता है, तो हमेशा थोड़ी सी कुछ देर लगती है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। चलिए, आइए आगे चलते हैं। और जब आप एक बार ऑर्डर को डाल देते हैं, यानी कि टॉपअप की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पैसे जो है टॉप अप करेंगे। तो उसके लिए आपको आईबैन नंबर चाहिए होगा, और ये आईबैन का जो नंबर है, ये ये जो जानकारी है ये आपको चाहिए होगी। और एक देश से दूसरे देश के हस्तांतरण के लिए यहाँ पर आपको ये आईबैन नंबर या स्विफ्ट कोड देना होता है, और स्विफ्ट कोड सबसे नीचे है। उसके बाद आपको अकाउंट का नाम उस वहाँ पे डालना होगा, और अगर वो वहाँ पर ये पूछता है कि आप किसको हस्तांतरण कर रहे हैं, तो आप वो भी वहाँ चीजें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं फिर आग्रह करूंगा कि रेफरेंस के अंदर या टिप्पणी के अंदर अपना यूजर आईडी अगर आप डालेंगे, तो वो आगे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हमें पता चलेगा कि आपके अकाउंट को हैक नहीं किया गया है, और इसीलिए ये सुरक्षा कारणों की तरह वजह से कि जब भी आप बैंक ट्रांसफर से टॉप अप कर रहे हों, और ये एक बड़ी रकम है, तो आप अपनी यूनिक यानी कि अपनी यूजर आईडी जो है वो टिप्पणी में डाल रहे हैं। यदि आप नहीं डालेंगे, तो हम इसको रोक देंगे पारदर्शिता और सुरक्षा कारणों की वजह से। तो चलिए, आइए, जब हम लोगों ने हस्तांतरण की बात कर ली, बैंक से हस्तांतरण अगर आप टॉप अप करते हैं, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हस्तांतरण करने के लिए आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपको कितनी रकम जो है आपको
आपको टॉप अप करनी है। उसके बाद आपको अपने कार्ड की जानकारी डालनी है, जो कि बहुत सरल है। और क्योंकि आपने नियम और शर्तें पहले पढ़ चुके हैं, तो आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर $100 को अगर मैं हस्तांतरण करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो ये केवल 6.50 यूरो ले रहा है। तो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर राशि, टॉपअप की राशि बहुत कम है, तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड, कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड है, वो यहाँ पर काम करेगा। तो चलिए डेनिस, माफी चाहेंगे, अब मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर विनिमय की बात करते हैं कि जब आप एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में आप बदलाव करते हैं, विनिमय करते हैं। तो जब आप यहाँ पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में जाते हैं, तो आप यहाँ पर आपको क्वांटम एसेट्स में आपको क्या चाहिए, तो आप वहां से क्वांटम एसेट से आप यहाँ पर अपनी जानकारी डालेंगे। और मैं सबसे पहले क्वांटम एसेट्स में मैं एक्सचेंज बटन दबाऊंगा, विनिमय का बटन दबाऊंगा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरा जो यूरो है वो यूएसडी में बदल जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं पहले कदम के अंदर कि मुझे यूरो से डॉलर के अंदर चाहिए। जहां से आप विनिमय करना चाहते हैं, यूरो को आप पहले रखेंगे, डॉलर में आप करना चाहते हैं, डॉलर को आप दूसरा रखेंगे, और आपको केवल 1% का प्रभार लगेगा, जो कि बहुत कम है। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितनी आपको राशि मिलेगी। और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें जब आप पुष्टि कर देते हैं, तो आप जब नीचे एक्सचेंज का बटन दबाएंगे, विनिमय का बटन दबाएंगे, तो ये विनिमय आपके अकाउंट में हो जाएगा। ये बिल्कुल इतना सरल है जैसे 1 2 3। अब अगर आप परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करते हैं, तो यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहते हैं एक ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट से दूसरे ग्लोबल यूनिट पे के अंदर, तो दोस्तों जितने भी ये आंतरिक हस्तांतरण हैं, ये बिल्कुल मुफ्त हैं और इन पर कोई प्रभार नहीं लगता। तो अगर आप एक जीयूपी अकाउंट से दूसरे जीयूपी अकाउंट में डाल रहे हैं, तो वाकई आपको कोई भी आपको प्रभार नहीं लगेगा। और ये इसलिए कि जैसे अगर आपका व्यावसायिक अकाउंट है और आपके ग्राहकों के पास भी जीयूपी का अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फायदे की बात है कि अगर आप व्यावसायिक अकाउंट है, तो आप अपने ग्राहकों का अकाउंट भी ग्लोबल यूनिट पे में खुलवाएं, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरी विश्व की जनसंख्या के 15% अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो 15% लोग हैं, ये कौन सा मंच इस्तेमाल करेंगे? ये ग्लोबल यूनिट पे का मंच इस्तेमाल करेंगे हस्तांतरण करने के लिए। और इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो यहां पर वो, अगर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप कौन सी मुद्रा से आप हस्तांतरण करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप जो है कि कौन सी कितनी राशि का हस्तांतरण आप करना चाहते हैं। और एक चीज जो बहुत बढ़िया है, और ये एक ग्लोबल यूनिट पे से दूसरे ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट में डालने के लिए, तो सबसे बढ़िया बात क्या है? तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कोई भी अंतरराष्ट्रीय आई बैन या स्विफ्ट कोड डालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल ईमेल चाहिए, उनका नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और उनकी एक यूनिक यूजर आईडी चाहिए, बस। और इसके बाद जो है ये चीजें हमें चाहिए। और एक बार जब आपने ये जानकारी डाल दी, तो आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल जो है आप टिप्पणी के अंदर एक रेफरेंस डाल सकते हैं कि ये जो पैसा हस्तांतरण कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। हो सकता है आप अपना नाम डालना चाहें। कल को अगर कोई आपके अपने अकाउंट में ढूंढना चाहे कि ये पैसा कहां से आया, तो उनको ये पता रहे। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि इस समय हमारे पास
जो केवल और केवल हम लोग बैंक अकाउंट के माध्यम से निकासी कर सकते हैं, और बहुत शीघ्र हम लोग वीजा और मास्टर कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। और वो भी उस समय जो रणनीति है जो हम टॉपअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो निकासी के लिए भी वो लागू होगी। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई बाहरी निकासी कर रहे हैं, तो अगर आप वीजा या मास्टर कार्ड के साथ करते हैं, तो विश्व में आप कहीं पे भी होंगे तो आपको वो पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड सभी के पास होता है। और इसके अंदर जो प्रभार है, जो शुल्क है, वो बहुत कम है। और आप यहाँ पर सुनिश्चित भी हो सकते हैं कि हम लोग जो हैं, ये जो सेवा है, ये सेवा हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर आप बाहरी हस्तांतरण कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, हस्तांतरण के लिए हम लोग पहले बैंक अकाउंट को देखते हैं। तो उसके लिए आपको सीपा या स्विफ्ट अकाउंट की जानकारी चाहिए होगी। तो सीपा के लिए आपको क्या चाहिए? तो ये सीपा कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सीपा जो है वो तभी इस्तेमाल होता है जब आप यूरोपीय देशों के अंदर आप हस्तांतरण कर रहे होते हैं। अब मुझे ठीक से नहीं पता है कि कौन-कौन से देश अभी यूरोप के सीपा के छत्र के अंदर आते हैं। लेकिन यदि आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं और आप हस्तांतरण कर रहे हैं किसी और अकाउंट में यूरोपियन यूनियन के, तो आप एयूसी का इस्तेमाल करेंगे, एयूसी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी आप हस्तांतरण कर रहे हैं जो यूरोपीय देशों से बाहर है, तो आप वहां पर जो है, या यूं कह लीजिए कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण हो रहा है और ये यूरोप से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आप यहां पर स्विफ्ट नंबर का चयन करेंगे। तो आपको ये स्विफ्ट हस्तांतरण, स्विफ्ट ट्रांसफर करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप सबसे पहले परिसंपत्ति का चयन करेंगे, मुद्रा का चयन करेंगे, यूरो, यूएसडी या स्विस फ्रैंक, और उसके बाद आप सारी जानकारी देंगे, जैसे कि आईबैन या बैंक अकाउंट का नंबर, और उसके बाद स्विफ्ट का एबीए या बीएसपी नंबर, और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या हस्तांतरण जानकारी है, जो कि आप टिप्पणी में डालेंगे, ताकि आप जिस अकाउंट में ये हस्तांतरण कर रहे हैं उनको पता हो कि आप ये क्या कर रहे हैं। और कल को जिस अकाउंट में ये हस्तांतरण होगा, तो उनको भी पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, और ये पैसा कहीं रास्ते में जो हस्तांतरण के दौरान कहीं गुम नहीं जाएगा। तो अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से अकाउंट में आपको पैसा डालना है। तो आप वहां पर बैंक अकाउंट डालेंगे जहां पर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब आप ऐसा कर रहे हैं, तो हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप ये हस्तांतरण एक से ज्यादा बार करेंगे, या इसी इसी व्यक्ति को आप जो हैं, आप ये हस्तांतरण बार बार करने वाले हैं, दोहराने वाले हैं, तो आप यहाँ पर एक रेडियो बटन को आप पुष्टि कर दीजिए कि आप ये जो जानकारी है इसको सेव करना चाहते हैं। और अगर आप इसको बस एक ही बार करने वाले हैं, तो आप इसको रेडियो बटन दबाकर इसकी पुष्टि नहीं भी कर सकते। तो फिर उसके बाद हम लोग जो हैं, यहाँ पर आप डालेंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था, कि ये 30 यूरो, 45 यूएसडी या 45 स्विस फ्रैंक का प्रभार आपको लगेगा, जो कि आपको दाहिनी तरफ आपकी स्क्रीन के दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है। और चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वांटम परिसंपत्ति के बारे में सब कुछ डाल दिया है, जान लिया है। क्वांटम एसेट्स के बारे में जान लिया है। तो जो छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं क्वांटम एसेट के साथ, तो ये आपके लिए बहुत भौतिक ऑपरेशंस होंगे, बहुत ही मूलभूत गतिविधियां होंगी। तो यहाँ पर जब आप इस अकाउंट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर जब आप परिसंपत्ति के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपकी सारी परिसंपत्तियां। और यहाँ पर
छठवें स्थान के ऊपर आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा, एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा, और वो आपसे कहेगा कि आप नई परिसंपत्ति को जोड़ना चाहेंगे। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नए परिसंपत्तियां जैसे जो आपके पास हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीसी और भी परिसंपत्तियां जो आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसको जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत सरल है, आप पुष्टि कीजिए कि आपने नियम और शर्तें पढ़ ली हैं, और उसके बाद आप जैसे ही पुष्टि करेंगे तो आपको केवल और केवल यहाँ पर बटन दबाना है कि आप ऐड न्यू यानी कि नए को जोड़ना चाहते हैं, नई परिसंपत्ति को, और ये आपके लिए 1 2 3 सरल तरीके से जोड़ देगा। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही विविधीकरण वाला विविध पोर्टफोलियो है। और अब आप बाईं तरफ देखेंगे कि आपके डैशबोर्ड के पास एक प्रकार से एक स्नैपशॉट है कि आपके पास कौन कौन सी परिसंपत्तियां उपलब्ध हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या संपत्तियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और बिल्कुल अगर हम इसके मुख्य भाग को देखें तो आप देख सकते हैं ये जो शीर्ष में दाईं ओर 6 छोटी छोटी बिंदु है या डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये सभी संपत्तियां हैं जो कि ग्लोबल यूनिट पे के अंतर्गत काम करती हैं और हम इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमें यहाँ दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो डिजिटल संपत्ति का उपयोग ग्लोबल यूनिट पे में होता है वो हमने आपकी सुविधा के लिए सबसे फ्रंट स्क्रीन में रखा है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर रखा है उसको। तो आप इसको देख सकते हैं और इसका उपयोग सरलता से कर सके उसके लिए हमने इसकी सेटिंग इस तरह से बनाई है। और अगर अब आप बात करें कि आपकी जो डिजिटल संपत्ति है उसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो आपके पास यह विकल्प है कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। खरीदना और बेचना ये जो विकल्प है ये केवल बिटकॉइन के लिए है, क्योंकि बिटनक जो कि क्वांटम क्लियरेंस पेमेंट प्रोसेसिंग का नियंत्रण करता है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं ग्लोबल यूनिट पे में, तो ये 2017 में सभी के समक्ष आए और इन्होंने अपने लिए पूरा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और हम इस संपत्ति का उपयोग करते हैं और हमने इसको बिल्कुल शून्य से निर्माण नहीं किया है और हम इसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 4 विकल्प है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो खरीदने वाला जो ये विकल्प है ये बहुत ही रोमांचक है। यहाँ पे आपको एक कार्य क्षमता मिलती है, एक फीचर है जिसका नाम है लिमिट फीचर। तो यहाँ आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं अपने लिए और आपका जो क्वांटम एसेट है जो कि बिटकॉइन के लिए भुगतान करता है आप उसे चुन सकते हैं। आपको जो राशि भेजनी है या खरीदनी है आप उसको भर सकते हैं और साथ ही इसकी एक सीमा को आप निर्धारित कर सकते हैं, यानी आप मैक्सिमम अधिकतम को चुन सकते हैं बिटकॉइन के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप यूनिटेक्स के अंदर देखते हैं, इसको सबमिट किया जाता है एक ऑर्डर की तरह। और जैसे यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो जो आपने नामांकन मूल्य रखा है अपनी सीमा के हिसाब से, वो सीमा निर्धारित करने के बाद जैसे ही बिटकॉइन वहां उस सीमा को छुएगा तो ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्वतः आ जाएगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है इसकी जिसका आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपने ये पहले नहीं किया है आप इसका उपयोग करके देखें, बहुत ही बेहतरीन ये विशेषता है। जब आप ये कर लेते हैं तो आप ये जो पूरी जानकारी है इसका सारांश देख सकते हैं और फिर नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं जो कुल शुल्क है वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपसे 0.05 यूरो लिया जाता है और यहाँ पे आपको जो कुल राशि है जिसमें आप इसको खर्चते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप ये कर लेते हैं आपको बाय बटन पे क्लिक करना है, बाय बटन पे क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और इसी के साथ हम अगले स्लाइड पर आ जाते हैं और अब यहाँ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि बाय और सेल जो करना है बिटकॉइन का
उसके बारे में ये जानकारी है। तो सबसे पहले आपको जो क्वांटम एसेट है उसे, जिसको आपने बेचा है बिटकॉइन में, आपको जो भी राशि है बिटकॉइन की, आपको उसे नॉमिनेट करना है जिसको आप बेचना चाहते हैं। जब आपने इसको चुन लिया है तब आप ये देखेंगे कि जो मार्केट ऑर्डर है सेल बिटकॉइन इमीडिएटली, यानी तुरंत, जो बीटीसी है उसको अभी आप बेच दीजिए। इसका ये मतलब है कि 15 सेकंड के बाद एक रिफ्रेश बटन होता है, यानी ताजा कर देता है वो मूल्य को जो कुछ भी बाजार में चल रहा होता है। यानी कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो चार्ट को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जो मूल्य है वो दैनिक रूप से कैसे ऊपर और नीचे हो रहा है, वो उस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलता है कि आप बहुत ही सरलता से केवल मूल्य को ध्यान में देते हुए बहुत ही सरलता से आप इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो आपको चीजों को जटिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब आप ये कर देते हैं तो इसके बाद आपको बाजार का मूल्य पता चल जाएगा। अगर आप उसे बेचना चाहते हैं, आप कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है और ये मैं आपका, जैसे ही आपने निर्णय अपना सटीक ले लिया है, आप उसको लेके अगर स्पष्ट हैं, आपको सेल बटन पे क्लिक करना है और एकदम तुरंत वो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो बेच दिया जाएगा। और अब इस स्लाइड पर ये, क्योंकि इस प्रारूप की अंतिम प्रस्तुति है और हमने ये सोचा है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें चल रही हैं ग्लोबल यूनिट पे में, तो इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं है। ग्लोबल यूनिट पे के साथ और भी बहुत सारी जानकारी आपको देनी होती है, तो ये अंतिम प्रस्तुति है। आप यहाँ पे इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि आपके जो डिजिटल संपत्ति वॉलेट है, वहां से आपको केवल उस राशि को नॉमिनेट करना है या नामांकन करना है जिसको आप भेजना चाहते हैं। फिर जो क्यूआर कोड है आप उसको, आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आप यहाँ स्लाइड पे भी देख रहे हैं। भेजने का और प्राप्त करने का ये जो विशेषता है किसी भी डिजिटल संपत्ति को हस्तांतरण करने के लिए, ये बहुत ही सरल है और ये बिल्कुल उसी से मेल खाता है जैसे हमने बाय और सेल के विकल्प में किया था। बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर वही सारी गतिविधियां करनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के साथ डिपॉजिट फी अमाउंट 0.0005 बिटकॉइन का शुल्क लगता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप प्राप्त कर रहे हैं या आपको भेजा क्या है डिजिटल संपत्ति, और अगर आप उसे प्राप्त करने वाले हैं बिटकॉइन में, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो न्यूनतम राशि है जो आप प्राप्त करने वाले हैं वो 0.0015 होगा एक बिटकॉइन का। वो राशि जो है वो ली जाएगी। और यानी कि अगर आप 10,000, आपको जो बिटकॉइन है वो आप जरूर प्राप्त करेंगे अगर वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन 0.0005 ये जो राशि है ये निकाल ली जाएगी। ये शुल्क है जो लगता है और उसको निकाल कर आपको बची हुई राशि प्राप्त होगी। तो देखिए हमने क्वांटम एसेट, डिजिटल एसेट दोनों को पूरा कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मुख्य डैशबोर्ड है वहां से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका डिजिटल एसेट है उसे आप बैंक अकाउंट में भेजें, तो यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट सबसे नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप अगली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, हस्तांतरण करने के लिए धन निधि को या हस्तांतरण करने के लिए जो धन निधि है, अगर आप सीपा ट्रांसफर करना चाहते हैं या स्विफ्ट करना चाहते हैं तो भी हमें उसी प्रकार से कार्य करना है और हमें ये सोचना है, समझना है कि किस प्रकार के खाते को हम खोलना चाहते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है और इसलिए इतना विशेष है क्योंकि जो बाहरी वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंकिंग संस्था है वो उसको आसानी से स्वीकृति देते हैं।
तो ये जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर यानी IBAN नंबर है, ये ऑफशोर अकाउंट के लिए है। तो आप लिथुआनिया में चुन सकते हैं सभी सीपा ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि आप यूरोपियन क्षेत्र अधिकार के अंदर और बाहर लेन देन करते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप बाकी देशों में धन को भेजते हैं या उसमें लेन देन करते हैं, तो आप स्विफ्ट को चुन सकते हैं। तो जो सीपा है वो केवल यूरो बैंक अकाउंट मुद्राओं के लिए ही उपलब्ध है, और आप उसको चुन सकते हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि किस मुद्रा को चुनकर आप आगे काम कर रहे हैं। तो एक बारी जब आप चुन ले कि मेरे को कौन से बैंक अकाउंट करेंसी के साथ काम करना है, तो आप ये चुनेंगे कि क्या ये लिथुवेनस्टाइन बैंक अकाउंट है या लिथुआनिया का है। जब आप चुन लेते हैं तो उसके बाद आप बैंक का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है या ये आपके व्यवसाय के लिए, या आपके ऊपर है। और इसके बाद आपको बस इतनी सी बात को मद्देनजर रखना है कि IBAN के लिए आपसे एक शुल्क लिया जाता है, और जो सीपा है वहाँ जो सभी यूरोपियन क्षेत्र अधिकार हैं उसके अंतर्गत सीपा काम करता है। तो वहाँ $125 यूरो जो है वो आपसे लिए जाते हैं, और लिechtenstein के लिए आपसे 250 यूरो लिया जाता है। ये वो शुल्क है जो आपसे लिया जा रहा है, जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। IBAN के लिए ये शुल्क है जो कि ये निर्धारित है और इन ट्रांजैक्शन पे लगता है, आपसे लिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया है कि ये शुल्क लिथुआनिया के लिए किस प्रकार से और यूरोपियन में जो बाकी जगह है वहां पे किस प्रकार से इसका शुल्क लगता है। तो कृपया करके आप जरूर चैट में अपनी प्रतिपुष्टि डालिएगा अगर आपको ठीक से समझ आ गया है। तो ये केवल यूरो के लिए है, और USD के लिए लिechtenstein अकाउंट है। अगर उसके लिए आप USD के लिए चुनते हैं तो इसमें आपका शुल्क $300 का होगा, और स्विस फ्रैंक के लिए आपसे 275 फ्रैंक शुल्क लिया जाएगा। तो ये जो बैंक अकाउंट है इसको हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्ड वाले हिस्से को भी पूरा करते हैं। तो जब हमने IBAN के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, हमने जब आप सब कुछ कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक विकल्प दिखाई देगा जो कि डेबिट कार्ड का विकल्प होगा, और ये प्रीपेड अकाउंट प्रीपेड कार्ड के हिसाब से है ये जो विकल्प आपको प्रदान किया गया है। और ये सभी बाहरी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसके साथ काम करता है, यूनिटेक्स के साथ काम करता है, और इवोरिच हमारा जो बैक ऑफिस है उसके लिए भी काम करता है। और जो कुछ अन्य देश हैं जो उनको थोड़ी सी दिक्कत है ग्लोबल यूनिट पे उपयोग करने में, वो भी इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जो डिजिटल एसेट है, ये ऑर्डर न्यू कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। उस पे क्लिक करते ही आप इस स्लाइड पर आ जाएंगे, और यहाँ इस स्लाइड पर आप वर्चुअल कार्ड को मान लीजिए अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपकी सेवा में उपलब्ध है। ये पूर्ण रूप से कार्य क्षमता में है, कार्य करते हैं, और आप आज ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से जो भौतिक फिजिकल कार्ड है उसका इंतजार कर रहे थे कि वो दुनिया भर में वितरित हो, और जितना हमने अपेक्षा की थी उससे थोड़ा सा ज्यादा उसमें समय लग रहा है। लेकिन जो मानक कार्ड है या सुनहरा कार्ड यानी गोल्ड कार्ड है या मेटल कार्ड है, उनमें इन सब में क्या आपस में अंतर है? आप इसी समय 3 बजे मॉस्को समय कल मार्शल की प्रस्तुति में शामिल हो, वहां आपको तीनों के बीच के अंतर और तुलनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ 3 मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं। आइए हम अगली स्लाइड पर चलें। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले जो कार्ड इन्फो है, यानी कार्ड के बारे में जानकारी, फिर टॉपअप और विड्रॉ, ये 3 विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम आपको कार्ड इन्फो यानी उसके विवरण के बारे में बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन पे शेष राशि है और आप केवल यूरो के माध्यम से टॉपअप कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में दीजिए, खास करके अगर आप यूएसडी में अगर काम करते हैं तो ये बात आपको ध्यान में देने लायक है। जितने भी अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं, उनको भी इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करके इसे टॉपअप करना है। और यहाँ पे जैसे आप कार्ड का प्रकार देख सकते हैं, वो कौन सा है, वर्चुअल कार्ड है। फिर आप यहाँ पे इसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है ये सक्रिय है। तो अब आप बिल्कुल नीचे की ओर अगर देखेंगे, आपको दोबारा से 3 चीजें दिखाई देंगी कि विवरण दिखाएं, फ्रीज और तीसरा डीएक्टिवेट। तो विवरण दिखाएं वो आपका जो कार्ड नंबर है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो भी स्टार के मार्क आप देख रहे हैं, जो भी चिन्ह आप देख रहे हैं सितारे बने हुए, ये एस्ट्रिक्स हैं, ये आपकी पूरी डिजिट है और अंत में सीवीवी नंबर होता है, जो कि हमने बंद करा हुआ है या छुपाया हुआ है एक प्रकार से। ये सीवीवी नंबर बहुत जरूरी है। जहां आपको ये शो डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी विवरण दिखेंगे। अब एक बात ये है कि जो भी फिजिकल कार्ड जब आएंगे तो शायद हो सकता है आपको वर्चुअल कार्ड की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, और शायद आपको ये लग सकता है कि मेरे पास जो भी फंड्स हैं वर्चुअल कार्ड पे, मैं उसका अभी उपयोग नहीं करना चाहता, तो आप फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके विवरण है वो किसी और ने देख लिए हैं और किसी और ने आपकी जानकारी को कहीं चोरी कर लिया है या उसको दुरुपयोग कोई अगर कर रहा है, तो आप डीएक्टिवेट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। वरना आप फ्रीज वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो फिलहाल आपके कार्ड पे फ्रीज हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपको इस कार्ड की आवश्यकता ही नहीं है, आप कभी भविष्य में इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, तो डीएक्टिवेट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो 2 भाग हैं जो आपके बैंकिंग कार्ड के तहत करते हैं, ये बहुत ही सरल तरह से हमने अभी आपको समझाया है। और अभी यहाँ पे 2 सरल और कदम हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपका जो यूरो क्वांटम एसेट है वहां से आप टॉपअप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो राशि है वो 15 चुनी है। फिर मैंने ये देखा कि नीचे की ओर शुल्क लिया जा रहा है, 2% शुल्क है जो लिया जा रहा है सभी टॉपअप के लिए। और इसको तुरंत मेरा जो मुख्य राशि है जिससे मैं टॉपअप करने जा रहा था, वहां से इस राशि को घटा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि 14.78 की राशि दर्शा रहा है। और इसके बाद आपको विड्रॉल में भी यही करना है। अगर मान लीजिए आपके कार्ड से आप क्वांटम एसेट में धन को निकासी चाहते हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कार्ड में से राशि बाहर निकले, तो दोबारा से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शुल्क लिया जा रहा है, 2% ये शुल्क है जो आपसे लिया जाता है। और फिर आपको राशि दर्शाई जाती है, घटने के बाद वो कितना होगा, और आप विड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो तत्काल राशि जो है विड्रॉ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लगभग अपनी बात पूरी कर चुके हैं। पर मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक इतिहास का फिल्टर प्रदान करता है ग्लोबल यूनिट पे, जिसके तहत आप सभी लेन देन का इतिहास देख सकते हैं। तो जब आपका डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तब आपको ये पृष्ठ दिखाई देगा जहां आपको जो हाल ही में किए हुए 5 लेन देन हैं जो आपने किए होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको तिथि दिखेगी, फिर आपको प्रकार दिखाई देगा कि किस प्रकार की आपने किया है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, राशि देखेंगे आप, और साथ ही स्थिति और विवरण। तो आप ये देख सकते हैं कि किस राशि में आपने किया और क्या उसकी स्थिति रही है, क्या वो जो लेन देन आपने किया वो रद्द हो गया है, वो पूरा हो गया है या अटक गया है बीच में, तो वो भी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही आपको ये दिखाई देगा कि कितने प्रोग्रेस में यानी प्रगति में हैं, कितने बंद हो चुके हैं, कितने रद्द हो गए हैं। तो आपको हर तरह से ये पता चल जाएगा कि आपका जो ग्लोबल यूनिट पे खाता है
उसमें आपके पैसा कहाँ पर है, किसी भी लम्हे में वो कहाँ पे है, किस तरह से वो कहाँ से गुजर रहा है। तो वास्तविकता में आप जैसे आपका वास्तविक समय है उसके अंदर आप अगर बैंक के साथ काम करते हैं, आप अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं बैंक में, तो भी आपको उसी प्रकार से केवल एक डाटा दिखाई देता है। और वो डाटा जो है वो आपका कभी भी आपके हाथ से छूट सकता है, आपके हाथ से आप उसे गवा सकते हैं। पर यहाँ ग्लोबल यूनिट पे में ये नहीं होता, सभी ट्रांजैक्शन का इतिहास आपको समय समय पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने आपको आपकी और सुविधा के लिए एक तिथि का फिल्टर दिया है, यानी हमने आपको एक टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मार्च का माह में देखना चाहते हैं आपने कब कब लेन देन किया, तो 103 मैंने 2021 में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया है, आप वो तिथियां यहाँ पे डाल सकते हैं और आपको प्रत्येक लेन देन की इतिहास देखने को मिल जाएगा जो आपने मार्च के माह में जो भी लेन देन किए होंगे। और इसके बाद आपका जितना मन करे उतना ज्यादा आप इन फिल्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का हमने लेन देन किया था। मान लीजिए कि मार्च के महीने में हमने तिथि तो हमने चुन ली। अब मान लीजिए कि मैंने जो भी लेन देन किया था जिसे मैं तलाश रहा हूँ वो कार्ड से किया गया लेन देन है, तो मैं यहाँ पे प्रकार के अंदर कार्ड को चुन सकता हूँ कि मैंने, हो सकता है कि कार्ड के माध्यम से अगर कोई लेन देन किया है तो मैं उसको यहाँ उस प्रकार को चुन लूंगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ मान लीजिए कि आपको ये भी अगर ध्यान है कि कौन सी संपत्ति में आपने काम किया था, कौन सी मुद्रा में आपने काम किया था, तो आप उसे भी चुन सकते हैं कि क्या आपने यूरो में किया, यूएसडी में किया, स्विस फ्रैंक में किया, बैंक कार्ड से किया, बिटकॉइन से किया, इथीरियम से किया, टीथर से किया या यूएसडीसी से किया। तो कोई भी जो डिजिटल संपत्ति है आप उसको चुन सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे सोना, चांदी और प्लैटिनम भी, जब हम लोग भविष्य में कमोडिटीज के घटक को भी इसमें जोड़ देंगे तो भी आप उसको चुन सकेंगे और वहां पे भी आपको अपना पूरा इतिहास देखने का मौका मिलेगा। अब इस स्लाइड पर अंतिम फिल्टर जो आप चुन सकते हैं वो आप स्थिति के हिसाब से भी लेन देन को चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लेन देन प्रगति में है, रद्द हो चुका है, पूरा हो चुका है, लंबित है या विफलता को प्राप्त हो गया, तो आप किसी भी जो भी एक ट्रांजैक्शन को आप ढूंढ रहे हैं या एक लेन देन को आप ढूंढ रहे हैं, आप उसका ये प्रकार भी आप चुन सकते हैं। और उसके बाद आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा कि जब आप सभी फिल्टर को चुन लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से अपना पूरा इतिहास आपके पसंदीदा या चुने हुए हिसाब से आपको फिल्टर में देखने को मिलेगा अपना लेन देन। तो ये आपको पूर्ण रूप की सुरक्षा देता है और मन में संतुष्टि देता है, जहां आपको अपने हर लेन देन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल अब हम अंत तक आ चुके हैं हमारी प्रस्तुति के, और ये जो स्लाइड है ये अपने बारे में सब कुछ कहता है। यहाँ पे आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और आप अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा और साथ ही आप अपना नाम देख पाएंगे, आपका पता जहां पे आपने पंजीकृत किया है ग्लोबल यूनिट पे के साथ, और साथ ही आपका अनूठा उपयोगकर्ता आईडी वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी। फिर आप ये भी चुन पाएंगे कि कौन से मुख्य मुद्रा में आप अपने खाते का उपयोग करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अंग्रेजी ही केवल इकलौती ऐसी भाषा है जिसे आप फिलहाल चुन सकते हैं, लेकिन भविष्य में हमारी बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी अनुवाद चल रहा है जिस प्रकार से इवरिच में है। तो सारी चीजें धीमे धीमे आपके पास आने वाले हैं, हो सकता है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल आपके सब्र की सराहना करते हैं। और यहाँ पर आप अपने व्यवसाय खाते को भी खोल सकते हैं जिस प्रकार से हमने प्रस्तुति की शुरुआत में आपको बताया था। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पहचान या पासपोर्ट परिवर्तन के लिए आपको समर्थन
आपको सूचित करना आवश्यक है। ग्लोबल पास को, ग्लोबल यूनिट पे को आपको बताना बहुत जरूरी है, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप सपोर्ट फीचर को चुनते हैं। तो इस स्लाइड पर हम आपको दोबारा से बताना चाहते हैं, जो भी हाल ही में किए हुए आपके ट्रांजैक्शन है, उसी प्रकार से आपको हाल ही में दिए हुए समर्थन सेवा से कोई भी अगर संदेश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सपोर्ट के अनुभाग पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, जब मैंने अपने लिए खाता खोला था तो ये उसके बारे में मैंने कोई शिकायत एक दर्ज की थी, और ये उसी का संदेश मेरे पास आया हुआ है। तो आप यहाँ पे बड़ा जो हरा बटन है नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि एक नई मैसेज का निर्माण करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू मैसेज पे, आप इस स्लाइड पर आ जाते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने लिए एक समर्थन टिकट का निर्माण कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी शिकायत है, तो अगर आप मान लीजिए ग्लोबल यूनिट पे सपोर्ट को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं तो आप विकल्प भी चुन सकते हैं उनको, वरना अगर आपको आईटी को चुनना है तो आप आईटी या तकनीकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके मान लीजिए खाते के अंदर कोई भी त्रुटि है, कोई भी ग्लिच हो गया है, तो आईटी विभाग जो है वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे तकनीकी किसी भी समस्या में सहायता देने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पेमेंट से आधारित है तो आप उसके लिए भी एक सपोर्ट टिकट का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही कोई ऑन बोर्डिंग अगर समस्या है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप वेरीफाई अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो भी आप सपोर्ट टिकट भेज सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने सभी दस्तावेजों को समर्पित किया है, सभी कदमों को पूरा किया है, और मुझे लगता है कि मेरे को इस खाते के अंदर अगर कोई और चीज भी आपने मुझसे मांगी थी मैंने वो भी दी है, तो आपने मुझे वेरीफाई क्यों नहीं किया है। तो ऑन बोर्डिंग टीम जो है वो आपको वापस आके बोलेंगे कि मिस्टर स्मिथ, हमने देखा है कि जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो 3 महीने की जगह 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको कोई दूसरा हमें आप प्रमाण पत्र दीजिए। तो इस प्रकार से वो आपके साथ बात कर सकते हैं। आपको जो भी खामी है या जो भी कोई चीज है जिससे आप चूक रहे हैं अपनी चीज को पूरा करने में, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि महसूस हो अपनी किसी भी समस्या में। तो इस हिसाब से ये 4 विभाग हैं जहां आप समर्थन सेवा से संपर्क बना सकते हैं और आपके सभी त्रुटियों में समाधान देने में हमें खुशी होगी। तो ये जो सपोर्ट टिकट है उसके अंदर आपको टाइटल देना है, यानी आपको शीर्षक लिखना है कि आपकी मुख्य समस्या क्या है, वो आप उसका शीर्षक दे सकते हैं। और फिर आप चुन सकते हैं कि कौन से विभाग में आप अपने टिकट को भेजना चाहते हैं। जितना आपके लिए मुमकिन है उतनी ज्यादा आप संदेश के भाग अनुभाग में आप उतनी ज्यादा जानकारी लिखें, कारण बताने की कोशिश करें, और आप क्या समाधान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आप भेजें, और साथ ही अपने अनूठे यूजर आईडी को दें। कोई स्क्रीनशॉट है तो वो भी आप दें, ताकि समर्थन सेवा वालों को पता चले कि आप कौन हैं, और आपके खाते के अंदर अगर कोई समस्या है तो उन्हें ये पता हो कि वो किससे बात कर रहे हैं और किसको उन्हें समाधान देना है। तो कोई भी आपका स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पे चौथे नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल कर सकते हैं, यानी आप उस पे खींच के उसको वहां पे स्क्रीनशॉट को अटैच कर सकते हैं, वरना आप अटैच फाइल पे अपने सभी स्क्रीनशॉट को संलग्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आ गए इस पृष्ठ पर और अब हम आपको सूचनाओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए आपके खाते के अंदर क्या चल रहा है, खास करके जब आप ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको पूर्ण रूप से हर सूचना के बारे में पता चलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये सुझाव है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन सभी जो बटन है आप इससे टिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सूचना चाहिए ईमेल के माध्यम से फिएट डिपॉजिट पे, क्रिप्टो डिपॉजिट पे, क्रिप्टो विड्रॉल पे,
फिएट विड्रॉल से। और साथ ही अगर आप हर बारी किसी नए आईपी एड्रेस से साइन इन कर रहे हैं तो अगर आपको सूचना चाहिए तो भी आपको प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई न्यूज़ लेटर की जानकारी चाहिए तो उसका भी आपको ईमेल प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही अगर आप हर साइन इन करने पर एक ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इस बटन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए किसी भी समय पे कि आपके खाते के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको ये सभी बटन को क्लिक करना होगा, क्योंकि आप तो ये जानना चाहते ही हैं कि अगर मैंने खाते का उपयोग नहीं किया तो ये किसने मेरे खाते को ऑन किया है। कोई और तो नहीं है जो मेरे मेरे पीठ पीछे मेरे खाते का उपयोग कर रहा है। तो आपको उसके लिए भी ईमेल आ जाएगा अगर संदिग्ध रूप से आपके खाते में प्रवेश करने की कोशिश की जाएगी। तो हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपने ना किया हो, कोई और कर रहा हो, तो भी आपको ट्रांजैक्शन के बारे में भी सूचना ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए हमारा सुझाव है सभी सूचनाओं को आप ऑन रखें। अब यहाँ हम बात करेंगे सुरक्षा सेटिंग के बारे में। आप कभी भी अपने जब भी आपको सही लगे आप फोन नंबर बदल सकते हैं, ईमेल पते को बदल सकते हैं, और जो आपका ईवोरिच खाता है उससे आप ईमेल को जोड़ सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अगर आप ईवरेज बैक ऑफिस से ग्लोबल यूनिट पे के अंदर अगर कमीशन प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों आपके ईमेल दोनों जगह वही मेल खाएं आपस में, ये जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप टू फैक्टर यानी दो कारक प्रमाणिक सुरक्षा को अगर आप सक्षम करना चाहते हैं, हमारी ये सलाह है आप उसे जरूर करें। तो आप इसे एक्टिवेट गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि किसी भी समय पे मान लीजिए अगर आपका कोई भी भागीदार है या आपकी कोई भी संरचना में व्यक्ति अगर उपयोग कर रहा है ग्लोबल यूनिट पे में, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रत्येक कार्य को किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी आप उनको जानकारी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी आपका अंतिम आईपी एड्रेस है वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं अपने खाते में। और इसके बाद आप अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो ये हमारा मुख्य भाग जो है ग्लोबल यूनिट पे मंच का, ये हमने पूरा कर लिया है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप अपने यूनिटेक्स खाते को भी इसके साथ जोड़ पाएंगे और वहां से भी भुगतान कर पाएंगे। आप जानते हैं कि कितने सारे लोग हैं यूनिटेक्स का उपयोग कर रहे हैं, ईओस, यूएनटीबी और अन्य मुद्राओं में लेन देन कर रहे हैं। तो अब आप यूनिटेक्स को टॉप अप कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से, और ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही सरल और सुगम है। तो सबसे पहले आप ये कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल विशेषता के साथ या कार्यक्षमता के साथ आप ये कर सकते हैं। जो कुछ भी यहाँ होगा वो यूनिटेक्स के अंतर्गत होगा। तो आप तो यहाँ पर शेष राशि को आप चेक करेंगे, चेक बैलेंसेस पर जाएंगे और यहाँ पर आप यूएस डॉलर या यूरो के साथ आप देखेंगे कि आपका शेष राशि कितनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो जो डिपॉजिट का जो हमारे पास विकल्प है उसको मैंने दबा दिया है। और जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आपको अगली स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि पहले केवल आप जो थे वो क्वांटम क्लियरेंस को जोड़ सकते थे, लेकिन अब आप जो है यूनिट टेक्स्ट को अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विकल्प भी आपके पास अब मौजूद है। तो अब आपको यहाँ पर ये डालना है, वो रेडियो बटन दबाना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपकी यूनिक यूजर आईडी क्या है, और ये फिर से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये आईडी को ध्यान रखना हमेशा जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे बताएं कि क्वांटम के साथ जब आप टॉप अप करते हैं तो वो आपसे 7% आपसे प्रभार लेता है, लेकिन क्वांटम के साथ आपको केवल 1.5% देना है। तो यहाँ पर जब आप यूनिटेक्स को ग्लोबल यूनिट पे के साथ जब आप उसको लिंक कर रहे हैं तो आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। और उसके बाद आप जो राशि आप जो
जमा करना चाहते हैं आप वो लिखिए और उसके बाद डिपॉजिट का बटन दबाइए और उसके बाद ग्लोबल यूनिट पे अपने आप बैकएंड से ग्लोबल यूनिट पे के साथ जुड़ जाएगा और ये पैसा आपका हस्तांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो ग्लोबल यूनिट पे है वो अब वाकई में तीन चीजों के साथ बातें कर रहा है और ये जुड़ चुका है इन तीन चीजों के साथ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो एंड्रे की दूरदर्शिता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि एक चीज हर एक चीज से बात कर पा रही है। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का कि आपने यहाँ पर ध्यान दिया और आप जुड़े रहे। तो अब हमारे पास देखते हैं कितना वक्त बचा है। मेरे पास 6 मिनट पड़े हैं, तो अगर कोई प्रश्न उत्तर है वो मैं लेना चाहूंगा। तो अंग्रेजी कक्ष में कुछ प्रश्न हैं और मैं उनको अब आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑफशोर अकाउंट का फायदा क्या है, यानी कि दूरस्थ अकाउंट का फायदा क्या है। तो यहाँ पर फायदा यह है कि आप ऑफशोर अकाउंट के साथ देखिए, बैंकों को क्रिप्टो और डिजिटल परिसंपत्ति पसंद नहीं है। वो आप के साथ, या यूं कह लीजिए कि वो आपके लिए बहुत कठिनाइयां खड़ी कर देंगे कि आप डिजिटल परिसंपत्ति में काम ना करें। और आईबैन और ऑफशोर अकाउंट के साथ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आईबैन अकाउंट के माध्यम से आप अंतरराष्ट्रीय अकाउंट खोल सकते हैं जो कि ग्लोबल यूनिट पे के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सीधा अपने आईबैन अकाउंट में जा सकते हैं जो कि ऑफशोर अकाउंट है और उसको आप ग्लोबल यूनिट पे के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बना देता है और उसके बाद एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो प्रभार है बिटकॉइन के लिए वो भेजने के लिए नहीं लगता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राप्त करने के लिए लगता है। तो वो 0.003 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा था कि जो ये प्रश्न है कि यहाँ पर अगर आप हजारों डॉलर के बाद हजारों डॉलर और हजारों डॉलर आप जमा करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हैं कि आप अपने पैसे या बहुत बड़ी रकम आप उस अकाउंट में नहीं रखना चाहते जो, या उस बैंक में नहीं रखना चाहते जिसका दिवालिया निकल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो अकाउंट है वो ग्लोबल यूनिट पे में लेकर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अगर आप प्रतिशत या प्रभार दे रहे हैं तो ये वाकई जो प्रभार है बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर हम लोग 1 लाख डॉलर अगर आप हस्तांतरण कर रहे हैं और उसका अगर हम 1% भी लें कि प्रभार के लिए, जो कि हस्तांतरण शुल्क होता है, जो कि सामान्य हस्तांतरण शुल्क है, तो हम लोग यहाँ पर 1,000 डॉलर की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग उस चीज की बात करें कि आप अगर सिर्फ 35 यूरो दे रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि बड़ी रकम बड़ी रकम का जो हस्तांतरण है उसके अंदर आप जो है, या टॉपअप है, हस्तांतरण है, उसके लिए आप जो है बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि छोटी छोटी रकम है तो आप वीजा या मास्टर कार्ड से टॉपअप या आप निकासी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आप मुझे ईमेल दे सकते हैं अपना। और एक और प्रश्न है अंग्रेजी कक्ष में, और
क्या हम लोग यूएसडी को यूएसडी और यूएसडीटी को हम लोग यूनिटेक्स से ग्लोबल यूनिट पे में बेच सकते हैं और वहां से निकासी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप आपका जो वीजा या मास्टर कार्ड का अगर आपके पास विकल्प है, तो आप वाकई अपने आप सीधा अपने जो जो निकासी है वो अपने कार्ड के ऊपर कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि यूनिटेक्स और जो ग्लोबल यूनिट पे हैं ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और उसके बाद आप यूनिटेक्स से आप जो है आप ग्लोबल यूनिट पे में हस्तांतरण करके अपने अकाउंट में आप हस्तांतरण कर सकते हैं। तो एक और प्रश्न। तो यहाँ पर यहाँ पर स्पेनिश कक्ष से भी एक प्रश्न है। तो स्पेनिश कक्ष में कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैंने दस्तावेज दिए थे और उन्होंने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, मैंने वो भेजी थी, लेकिन मैं अभी तक मेरा जो जो अभी तक मेरी वेरिफिकेशन या पुष्टिकरण नहीं हुआ है। और बैंक तो देखिए, अगर ये दस्तावेज की बात की है तो आपको कम से कम जो है आपको पता जो है वो आपने जो पता जो आपने दर्ज किया है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर मेल नहीं खाएगा तो आपको जो है वो देर लगेगी। लेकिन यदि अभी तक आपके दस्तावेज या आपको कोई उत्तर नहीं मिला है, तो आप अपने अकाउंट में जाकर आप समर्थन सेवा से बात कर सकते हैं, और उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपने ये सारी की सारी चीजें भेज दी हैं, सभी दस्तावेज भेज दिए हैं, और ये चीज अभी तक आपको तंग कर रही है, और मुझे लगता है कि वो आपकी बहुत शीघ्र अतिशीघ्र मदद भी करेंगे और आपके अकाउंट को वो जो है वेरीफाई या पुष्टिकरण भी उसका कर देंगे। तो एडन, एक और प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गया हूं और मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, तो क्योंकि मैं अपने ईमेल तक पहुंच नहीं बना पा रहा हूं। और एक और बात, जब आपने $2000 की बात की थी, तो क्या वो प्रभार व्यक्तिगत अकाउंट के लिए था या व्यावसायिक अकाउंट के लिए था? जी हाँ, ये व्यावसायिक अकाउंट के लिए था, जो कि $2000 की जो प्रभार लगता है वो एक बार का शुल्क है। और अगर स्विस फ्रैंक और यूरो की बात करें तो ये 1500 की रकम है जो आपको पे प्रभार आपको अकाउंट खोलने के लिए, यानी कि व्यावसायिक अकाउंट खोलने के लिए लगता है, बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए लगता है। और आइए, एक और प्रश्न था आपका। हाँ, ये प्रश्न था कि आप अपने ईमेल का जो पासवर्ड है वो आप भूल गए हैं, तो उनकी पहुंच अपने ईमेल तक नहीं बन पा रही है, तो क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपके ईमेल में वहां पर मैं पासवर्ड भूल गया हूं का एक फीचर जो है वो वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो मुझे 2 क्षण दीजिए, मैं अभी ये देख लेता हूं, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल बात है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा एक पासवर्ड यानी कि फॉरगॉट पासवर्ड का की एक विशेषता होती है, एक फीचर होता है। जी हाँ। तो मुझे माफी दीजिए, मेरा कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है। तो यदि आप लॉग इन करते हैं dti.net.ch के ऊपर, तो यहाँ पर जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ईमेल और पासवर्ड, तो उसके साथ में एक बटन है और उस पे लिखा है कि फॉरगॉट पासवर्ड, यानी कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो आप अपनी ईमेल जो है वो वहाँ से आपका जो ईमेल है उसके अंदर वहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो हमने आखिरी स्लाइड जिसके अंदर यूनिटेक्स और हम लोगों ने ग्लोबल यूनिट पे की बात की, जो उनको जोड़ने के लिए, और क्वांटम जो है जहाँ पर जिन लोगों के पास ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट नहीं है, तो वो क्वांटम
क्वांटम क्लियरेंस जो है, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि तो अगर आपको अपना पासवर्ड को रीसेट करना है, ये दोबारा से हम पिछले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, तो आपको dti.net.ch के ऊपर जाइए और अपना ईमेल और पासवर्ड डालिए और वहां पर आप अपने पासवर्ड के ऊपर फॉरगॉट पासवर्ड के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपसे वो पूछा जाएगा कि आपकी ईमेल क्या है और उसके बाद आप अपना जो ईमेल का अकाउंट या आपका जो पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो क्या आपको और उसके बाद तो आप पौला के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जी हाँ, कि क्या फर्क है। तो पौला का प्रश्न ये है कि क्वांटम क्लियरेंस का जो विकल्प है उसके अंदर 7% क्यों लगता है और ग्लोबल यूनिट पे सस्ता क्यों है। तो बिल्कुल ठीक बात है। और ये आखिरी स्लाइड जो थी हमने इसी ऊपर बात की थी कि यूनिटेक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं और आप देखेंगे वहां पर आपके पास यूनिटेक्स में दो विकल्प हैं, ग्लोबल यूनिट पे और क्वांटम क्लियरेंस का। तो क्वांटम क्लियरेंस जो है वो 7% है और ग्लोबल यूनिट पे जो है वो 1.5% है। तो ये फायदा है कि आप क्वांटम आप माफ कीजिएगा कि आप जो यूनिटेक्स का जो एक्सचेंज है उसको आप जीयूपी के साथ जोड़ दीजिए, उससे आपको फायदा होगा। एक और प्रश्न कि हम किस प्रकार से अपना वर्चुअल कार्ड जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। भौतिक दुकानों पर जाकर आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन जो जो कार्ड है वो ऑनलाइन कार्ड आप ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है अगर इसीलिए हम लोग भौतिक कार्ड्स का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही भौतिक कार्ड उपलब्ध होंगे तो आप वो दुकानों पर भी जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कार्ड्स को आप केवल और केवल ऑनलाइन पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमसे एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि एप्पल पे और गूगल पे आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ेगा। और आपको ये बता दें कि आने वाले भविष्य के अंदर ये सेवाएं भी ग्लोबल यूनिट ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट के साथ जुड़ जाएंगी। तो तो यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि मैं किस प्रकार अपने यूएई के अकाउंट में मैं अकाउंट में पैसे वापस या निकासी करवा सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता नहीं है कि यूएई में क्या क्या कदम होंगे, लेकिन एक सामान्य से साधारण से जो कदम है वो मैंने आपको इस प्रस्तुति में बता दिए हैं कि आपको अपना आईबैन देना होगा, अपना स्विफ्ट कोड देना होगा, अपना अकाउंट का नंबर देना होगा और मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यदि आपके पास कुछ ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो आप जो है अपने बैंक के साथ बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये पैसा अभी तक आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया। अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है और कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। तो आइडन आपको प्रश्न जरूर बताना होगा या जिस आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ये आप कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के लिए अभी तक उनको वाकई ये जो हस्तांतरण है ये चालू नहीं हो पाया है। तो एडन कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मार्शल और वैलेंटीन आपको इसके बारे में सही उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो प्रस्तुति है अब हम लोग यहीं खत्म करेंगे और लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि कल के सत्र के लिए मार्शल के पास बहुत जबरदस्त खबर है और वो कल 3 बजे मॉस्को समय हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर आपके साथ बात करेंगे कि ग्लोबल यूनिट पे आपके लिए क्या क्या मौके लेकर आ रहा है, क्या नए मौके लेकर आ रहा है और ये उन लोगों के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो आप कल मार्शल की प्रस्तुति में जरूर जुड़ें और जूम लिंक को आप एवरेज बैक ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं और आपको वहां पर ये पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन कौन सी बैठकें होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं यही सत्र यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जुड़े और आने वाले सत्र से जरूर जुड़िए। और आप सारा का सारा ताज़ा जानकारी हमारे YouTube चैनल से प्राप्त भी कर सकते हैं। और ये जो ग्लोबल यूनिट पे का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके साथ का, आपके बने रहने का धन्यवाद। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे अब यहाँ विदा लेते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपसे अगले सत्र में बहुत नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।